Welcome to the channel of Chem Pacific. Now let's get started. The topic we are going to discuss is neutral method to calculate the 18 electron rule from the chapter organometallics. Now before we proceed, it is very important for us to know what do we mean by organometallics. देखो कभी भी कोई ऑर्गेनिक लिगैंड एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके जब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं and henceforth the name derived is organometallics. Organic ligand getting bonded to the metals. Now let us understand what we mean by hapticity. देखो एक कार्बन जब एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और रादर जब एक मेटल एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं hapticity 1 and it is denoted by eta 1. Similarly, when one metal gets bonded to three carbon atoms simultaneously, we define it as eta 3. And henceforth, when one metal is getting bonded to 5 carbon atoms simultaneously, we define it as eta 5. So when it is eta 1, it is 1 electron donor. Usually, this type of bond formation is usually defined as sigma bond formation, normal sigma bond formation. And when it is eta 3, it is 3 electron donor. And when it is eta 5, it is 5 electron donor. Usually what happens in the case of eta 5 or eta 3, the electron cloud, the pi electron cloud density is drifted towards the metal for the formation of the bond. Now let us understand what do we mean by 18 electron rule. See what happens, complex formation होने के लिए ये एक metal जो है ये metal ligand के साथ bond formation करते हैं. Let us take n number of ligand के साथ bond formation करते हैं. अगर ये जो metal है ये metal अगर transition metal होता है, ये metal अगर transition metal होगा then what will happen? So what do we mean by transition metals? ऐसे metals जो जिसके पास partially filled d orbitals होता है, मतलब इसके पास होगा s orbital, p orbital and partially filled d orbitals. Now see, just s orbital can accommodate maximum up to 2 electrons, p orbital can accommodate maximum up to 6 electrons, है ना, and d orbital can accommodate maximum up to 10 electrons. तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 18 electrons. मतलब जब टोटल 18 electrons हो जाता है तब सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. और हम जानते हैं दैट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स दे अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल रीजन. एंड इन नेचर इफ यू ऑब्जर्व यू विल फाइंड आउट दैट एक लीफ जो है, एक पत्ता जो है, उसका वन हाफ इज द सिमेट्रिकल टू द अदर हाफ. एक जेब्रा जो है वन हाफ इज सिमेट्रिकल टू द अदर हाफ. इनफैक्ट एक ह्यूमन बॉडी जो है वो भी वन हाफ इज एग्जैक्टली सिमेट्रिकल टू द अदर हाफ. सो इन नेचर ऑल्सो या कोई भी सिस्टम, नेचर में कोई भी सिस्टम जब सिमेट्री अटेन करते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं. और वही रीजन की वजह से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो आपको समझ में आ गया, जब वो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाते हैं और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं. दैट इज व्हाई कोई भी मेटल जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कंप्लीट, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जब 18 हो जाता है तो वो बन जाता है स्टेबल. तो हम क्या कर रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, व्हाट वी आर डूइंग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट. So what will happen जब मेटल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा? Since we are adding the electrons and one negative charge is indicating one electron, so with any negative charge, since we are having one negative charge, you have to add it to the overall 18 electron count. Now what will happen अगर मेटल एक non transition element है? If the metal is a non-transition element, then what will happen? तो उसके पास तो फिर d orbitals नहीं रहेंगे. अगर ये metal non-transition होगा तो इसके पास d orbital नहीं होगा.
है ना। तो फिर इसके पास क्या रहेगा, इसके पास रहेगा s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2, और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 6। तो इसके पास हो जाएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो ओबे करेगा ऑक्टेट रूल। देखो कंसेप्ट और साइंस सेम है, क्लियर। जो कंसेप्ट से हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक्सप्लेन किया, सेम कंसेप्ट में हमने ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो डेफिनेटली तो ऐसा एलिमेंट्स जो नॉन ट्रांजिशंस होते हैं, तो जिसके पास एस एंड पी ऑर्बिटल्स होगा, दे आर गोइंग टू ओबे ऑक्टेट रूल। नाउ लेट अस solve this question of CSIR NET December 2012 part B। तो उन्होंने कहा है, यहाँ पे दिया है that the stable cyclopentadiene complex of beryllium is what? So this is going to, since beryllium is having electronic configuration, since beryllium is having electronic configuration 1s2 and 2s2, see no d orbital, so this is going to obey the octet rule, not the 18 electron rule. So how you are going to do this? So basically हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, किसका, जो बेरिलियम है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम वही इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बेरिलियम का जो बैलेंस यहाँ पे कितना है, बेरिलियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट रादर द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2। And since it's a non-transition element, it is going to obey octet rule. So total electron कितना होना चाहिए, total electron count होना चाहिए 8। ना यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखो हैप्टिसिटी फॉर्म में दिया है। तो अगर आप हैप्टिसिटी को कहते हो x plus y is the total hapticity. So if you say that x plus y is the total hapticity, it is clear to you कि ओवरऑल कितना होगा, ये होगा टोटल हैप्टिसिटी 6। तो टोटल हैप्टिसिटी जब 6 होगा तब जाके according to the octet rule cyclopentadienyl complex of beryllium is going to be stable. So see in the example in the first option जो है वहां पे हमारा हैप्टिसिटी है 5, not accepted। second हैप्टिसिटी is 5 plus 3 8, not accepted। option number C 1 plus 3 4, not accepted। option number D is 5 plus 1 6। So this is the correct answer. Now let us move on to the next concept, that is what do we mean by the 16 electron rule। अगर कोई भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स अगर है, कोई भी अगर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लानर अगर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और उसमें जो मेटल है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल जो है, तो वो मेटल जो है अगर वो मेटल D8 ट्रांजिशन मेटल है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में टोटल कितना लिगैंड होता है, 4 लिगैंड। ये 4 लिगैंड में ईच लिगैंड इज गोइंग टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड ओवरऑल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। सो 8 प्लस 8 इज 16। सो कोई भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस विद D8 transition metals, it becomes 16 electron as if it is obeying the 16 electron rule। और इसका 16 इलेक्ट्रॉन होते भी है और वो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस काफी स्टेबल होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ज़ाइसिसॉल्ट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ज़ाइसिसॉल्ट। या कोई भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस आप देखेंगे तो आप देखेंगे दे आर मोस्टली 16 electron complexes and they are very stable। Now we have to learn how to calculate the 18 electrons of a complex। Before we move, it is very important to recapitulate about the nature of bond। We all know, very simple, but still let's do this। Now ionic bond सबको पता है, different kinds of bond, ionic bond, ठीक है। Then हमें पता है covalent bond।
सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर ए एंड बी में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो फिर ए के पास क्या होगा, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड बी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। एंड बी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल कोवालेंट बॉन्ड। इट मींस ए को अगर एक बी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो ए के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। तो अब क्या होगा, अगर ए को दो बी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा, ए को अगर दो बी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा, तो ऑब्वियसली ए के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। If A wants to form two bonds with two B atoms, then A must possess two unpaired electrons. So what happens when A will result in the bond formation with three B atoms? Obviously, A must be possessing three unpaired electrons. So this is normal covalent bond. And next we have the coordinate covalent bond. Now, next we have the coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और बी के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। देन व्हाट विल हैपन, ए फर्स्ट ऑफ ऑल will donate this lone pair of electrons to B, and after this is done, this lone pair of electrons will be shared both by A and B. Since the word sharing is used over here, so coordinate covalent bonding is a special case of covalent bond. तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू, एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे ए जितना बी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, जितना बी एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ए के पास उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग में ए के पास एक लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स है और बी के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है एंड देन दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड। तो हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉम्प्लेक्स। सो इलेक्ट्रॉन्स हम क्या क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं एक मेटल का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हम देखेंगे कि डिफरेंट लिगैंड जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो हम धीरे धीरे उसके साइंस को समझेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई एम डूइंग इज द CH3। नाउ द CH3 इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। Now we know that CH3 is one electron donor. So we have to understand why is this happening and how is this happening. See, the electronic configuration of carbon is 2s2 2p2. When it is forming CH3, now see this, मैंने क्या किया, जब एक A तीन B एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो A के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। Now see students, कि CH3 बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। सो एक कार्बन एटम, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, एक कार्बन एटम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 2p2, ठीक है। अभी ये CH3 फॉर्मेशन करना चाहते तो फिर इसके पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपल्सरी नहीं है, तो क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बनेंगे, तो ये फिर बन जाएंगे तो तीन आपके हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट, ये आप जानते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concern is how is CH3 one electron donor. For that we have to consider the rule number 1.
1. Rule number 1 is number of unpaired electrons. See, after the formation of CH3, CH3 is having one unpaired electron. CH3 is having one unpaired electron. So rule number 1 is number of unpaired electrons. Okay, number of unpaired electrons. So CH3 के पास कितना number of unpaired electron है? 1. That is why CH3 is 1 electron donor. That is why CH3 is 1 electron donor. तो इसका थोड़ा सा हम और डिटेल में कर लेते हैं. See, as you go down the group, what happens? So as you go down the group, what happens? The electronic configuration जो है, it remains the same. The electronic configuration remains the same, only there is change in the principal quantum number. Since the electronic configuration same रहता है, तो इसके chemical properties भी same रहेंगे. So that is why जो CH3 आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है, तो CH3 को अगर if you replace carbon with SiH3 अगर होता है, तो it will also become 1 electron donor. Similarly, GaH3 will also become 1 electron donor. Now, why is this CH3 1 electron? Due to the presence of 1 unpaired electron. ठीक है, अगर CH3 due to the presence of 1 electron donor बन जाता है, सेम H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1. इसके पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, so it will also become 1 electron donor. Similarly, pH is also 1 electron donor. So all of them, they're having the same characteristics. ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ that एक मेटल जो है, ठीक है, अगर मैं आपको कहती हूँ that एक मेटल जो है वो जब CH3 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, then that methyl group, that CH3 group जो है, that is donating 1 electron to the metal. ठीक है, so likewise you can always, अगर आप CH3 को H से भी replace कर सकते हो, pH से भी, so all of them are same and all of them are 1 electron donor. So please keep it in your mind, क्योंकि हम जब problem solve करेंगे ये सारे concept clear होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. Next, move on to the next ligand, that is NH3 is 2 electron donor. Now see students, nitrogen का electronic configuration क्या है? Nitrogen is having electronic configuration 2s2 2p3. Nitrogen having electron 2s2 2p3. Now यहाँ पे देखो students, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर NH3 formation हो रहा है, so अगर आपको NH3 formation हो रहा है students, तो फिर नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, जो कि इसके पास है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट होने की जरूरत ही नहीं है. इसमें कोई रीअरेंजमेंट होने की जरूरत ही नहीं है. सो व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स. Now you will wonder कि it is having no unpaired electrons. Now what will happen? जब कोई भी unpaired electron नहीं होता है, remember, जब कोई भी unpaired electron नहीं होता है, then rule number 1 is ruled out and then rule number 2 is applicable. Rule number 2 क्या कहते हैं? Is number of lone pair of electrons. And one lone pair is equal to 2 electrons. तो as because इसके पास कोई भी unpaired electron नहीं है, तो इसके पास कितना lone pair of electrons है? 2. So this is what होगा? 1 lone pair मतलब 2 electron donor. So therefore NH3 is 2 electron donor. I hope this is clear to all of you. I hope this is clear to all of you. Very important. अगर आप logically समझते हो, अगर हम 2-3 लिगैंड का जो नेचर है, जो साइंस है, जो लॉजिक है, वो अगर हम समझ जाते हैं, तो कोई भी दुनिया की कोई भी लिगैंड आप खुद सॉल्व कर पाओगे. आपको मेमोराइज करने की कोई भी जरूरत नहीं. इनका साइंस में कभी कोई मेमोराइज नहीं करते, हर कोई समझ के पढ़ाई करते हैं.
Now let us see in the group 15, as you go down the group, what happens? As you go down the group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So now what happens? Nitrogen जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 है. नाइट्रोजन तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3. नाउ फॉस्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है. डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली डिटरमाइंस द साइज. More the principal quantum number, bigger is the atom. ठीक है, but they are having same electronic configuration. It means all of them are having same chemical properties. It means all of them are having same chemical properties. Now students see, अगर NH3 जो हमने अभी अभी देखा है, हमें अभी सॉल्व किया है, is 2 electron donor, so therefore PH3 will also become 2 electron donor. Clear to all of you? और मैंने आपको अभी अभी क्या कहा था? मैंने आपको कहा था that CH3, H and PH, all of them are having the same characteristics, right? तो अगर PH3 2 electron donor है, तो फिर क्या होगा? PMe3 will also become equal to 2 electron donor, and PPH3 will also be equal to 2 electron. Clear to all of you? ठीक है? This is very important. Now let us move on to the next topic. Now chlorine is 1 electron donor as a terminal ligand and 3 electron donor as a bridging ligand. तो पहले तो हमें जान लेना है that chlorine का ये terminal ligand and bridging ligand का मतलब क्या है. If you consider X as chlorine, so अगर कोई ligand at the same time एक से ज़्यादा मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो फिर उसे हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगैंड. यहाँ पे X is getting bonded with 2 metals at the same time, so it is a bridging ligand. ऐसा भी होता है that X can also get bonded to 3 or 4 metal at the same time. That is also possible. So when it is getting bonded to 2 metal at the same time, we say it is a bridging ligand. We denote it by mu, and we say it is mu2. ठीक है. Now see students, इन्होंने कहा है कि क्लोरीन इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एज अ टर्मिनल लिगैंड. तो पहले क्या है वो तो आपका कंक्लूजन है, क्यों है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी चीज आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो वो हमें पहले जानना है. कोई भी चीज जब आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसका जो पहले हम जान लेते हैं वो है दैट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से हमें स्टडी कर लेते हो तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे. So fluorine, chlorine, bromine, iodine, you have chlorine का electronic configuration है 3s2 3p5. So see students, it is having this, so it is having 1 unpaired electron. So वो terminal ligand है. When chlorine is acting as a terminal ligand, when chlorine is acting as a terminal ligand, so it is getting bonded to a single metal. So 1 unpaired electron is more than enough. So it is acting as a terminal ligand, it is 1 electron donor. Fine. So what will happen when it will act as a bridging ligand? So when it will act as a bridging ligand, what will happen? It is getting bonded to 2 metals. So what happens? It donates its lone pair to the vacant orbital of metal and it makes one normal covalent bond with the metal.
यूजुअली द नेचर ऑफ कन्फर्मेशन इज एक नॉर्मल अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ और एक का जो लोन पेयर रेजोनेंस फॉर्मेशन। सो सी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, यहाँ पे एक लोन पेयर है जिसके लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक अनपेयर, सो इट बिकम्स 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 3 जो लिगैंड का कंसेप्ट जो साइंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये 3 अगर बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो फिर आपको दुनिया के सारे लिगैंड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सारे लिगैंड आप खुद सॉल्व कर पाओगे विद इन नो टाइम। Now let us understand, let us actually understand how to solve the problems of 18 electrons. तो बेसिकली क्या होता है, एक मेटल जो होता है उसका, एक मेटल जो है उसका d to the power x, where x is the valence electron. Valence electrons मतलब क्या है? Valence electrons मतलब ये है that outermost orbitals में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये आप सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2 तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। So in this case if you consider the valence electron, this is 8, so you have 8 electrons from iron and both of them are in the eta 5 mode। आप जानते हो जब वो eta 5 मोड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? 5 electron mole. You are having 2 eta 5 Cp. You are having 2 eta 5 Cp. So this is having 2 into 5 which is equal to 10. So if you add them, find this is an 18 electron complex. Hence it is a stable complex. Clear to all of you students? Now let us move on to this. Now what is the electronic configuration of manganese, or what is the valence electrons of what is the valence number of electrons of manganese? It is 7, 3d5 4s2, so it is 7. So from manganese you are getting how many electrons? You are getting 7. Now CO is a 2 electron donating ligand. Why is it so? वो हम next वीडियोस में डिस्कस, अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। So one CO is 2 electron donor and you are having 5 CO, तो फिर कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा? 5 into 2 and we notice there is one negative charge, तो हम ऐड क्या कर रहे हैं? हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1, so this you are having total 18 electron. Again this is an 18 electron complex, so therefore it is very stable. Clear? Next you have the example number 3, ruthenium. See ruthenium जो है, this is having 8 valence electrons, 4d7 5s, 4 ruthenium जो है इसके 8 valence electrons है, 4d7 5s 1 and so it is having 8 valence electrons, तो हमने 8 ऐड किया। अगेन कार्बोनिल इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, कितना कार्बोनिल है? 2, so 2 into 2. Now PME3, as discussed earlier, that since we discussed earlier that NH3 is 2 electron donor, है ना? तो फिर nitrogen and phosphorus they belong to the same group 15, so this is also 2 electron donor. And if you replace H by methyl or PPH3, if you replace H by methyl or you make it PPH3, then these are also 2 electron donors. So you have 2 into 2 and we already discussed the CH3 is 1 electron donor. So how many CH3 there? 1, 2 CH3 there and it is 1 electron donor. तो कितना हो गया? 8 plus 4 plus 4 plus 2, तो ये भी बन गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और ये भी बन गया स्टेबल। Now let us move on to the next example, and that is example number 4, and that is move on to the next example, that is example number 4. Now this is also a very good example. So molybdenum जो है
मॉलिब्डेनम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको कोई भी पीरियोडिक टेबल में सब मिल जाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4d5 5s1, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिटल है 6, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देन सी ये आपका ईटा 5 मोड में है, यहाँ पे द मेटल इज गेटिंग बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स 2, सो ये ईटा 1 मोड में है एंड क्लियरली इट इज ईटा 3 मोड में है, यू आर हैविंग 1 CO, so when it is eta 5 Cp it is 5 electron donor, when it is having eta 3 Cp it is 3 electron donor, when it is having eta 1 Cp it is 1 electron donor, and since you are having 1 CO ligand, so it will become 2 electron donor, and with the presence of one negative charge you have to add 1, तो ओवरऑल अगर आप ऐड करते हो आपको ये भी 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 18 हो जाता है वो बन जाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। बहुत इजीली हमें समझ में आ गया है। तो नाउ we are going to solve one question of CSI and NET June 2012 part C. So this is a very good problem. If you solve this, आपको पूरा 18 इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट आज हमने पूरा डिस्कस किया, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये कंसेप्ट और क्लियर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो रुदेनियम है, ये रुदेनियम एक ही मेटल है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो लिगैंड्स है ये टर्मिनल है या ब्रिजिंग है, क्योंकि एक मेटल अगर आपके कॉम्प्लेक्स में है तो ऑब्वियसली सारे लिगैंड्स डेफिनेटली टर्मिनल है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रादर कंफ्यूजन। ओके, सो नाउ इन द फर्स्ट ऑप्शन आप देखते हो दैट यू आर हैविंग दिस इन द ईटा 5 मोड। आप जानते हो ईटा 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, सो द फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज ईटा 5 एंड देन ड्यू टू रुदेनियम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब देखो ये है आपका 8 एंड Cl, अभी ये क्या है, ये है टर्मिनल लिगैंड, टर्मिनल Cl जो है इज ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड CO जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड PPH3 we just discussed is also 2 electron donor. So overall this is obeying 18 electron rule. Okay, next example, let us move on to the next example. In this case tungsten जो है it is having valence electron 6 and we know that CO, how many CO are there, 3, so 3 and each CO is 2 electron donor, and now we have to understand SiMe3 जो है SiMe3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है। ऑलरेडी आई डिस्कस दैट कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड दे ऑल बिलोंग टू द ग्रुप 14, सो जो अगर आपका CH3 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एज बिकॉज सिलिकॉन इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू ग्रुप 14, तो SiH3 भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो अगर आप H को Me या PH से रिप्लेस करोगे, Me या PH से रिप्लेस करोगे फिर वो सेम ही रहेगा और ये भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका 1 electron donor ही होगा। If you replace H with Me3 because both of them having 1 unpaired electron, तो ये भी आपका 1 electron donor ही होगा। तो ये हो गया 1 electron donor and this Cl is terminal ligand, it is a 1 electron donor. Now we have to understand the nature of NCMe. You have to understand the nature of NCMe. See, before we अंडरस्टैंड हाउ NCMe कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, हमें पहले समझना है डोनर एटम कौन है। तो ये जो कार्बन एटम है ये हो जाता है, इसका वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाता है, तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट सिंस दिस नाइट्रोजन हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, कितना है 2, तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको कितना मिलेंगे, आपको ये भी हो जाएंगे 18 electronic. So this is also obeying 18 electronic rule. Now the next example, iridium.
Now iridium is having valence electrons 9 and you're having 3Cl. So 3Cl, obviously all of them are terminals, which is having 3 into 1 and PPH3, 2 PPH3 and it is 2 electron donor. And हमें समझना है AsPH2 कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है. ना देखो आर्सेनिक कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 15 में है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ. सो आर्सेनिक इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्सेनिक इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p3. तो रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तभी आप रूल नंबर 2 में जाओगे, लेकिन जब तक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तक आपका रूल नंबर 1 ही एप्लीकेबल होगा. सो सी स्टूडेंट्स, AsPH2. सो AsPH2 जो है is actually forming arsenic is forming sigma bond with 2pH. रूल नंबर 1 एप्लीकेबल होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है रूल नंबर 1 पे. तो ये बन गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब नंबर ऑफ अनपेड सो ये हो गया आपका 1 फॉर दिस. एंड सिंस यू सी 1 चार्ज, तो ऑब्वियसली एक चार्ज हम ऐड करेंगे, तो ये बन गया 18 इलेक्ट्रॉन एंड विच इज अगेन स्टेबल. Now last but not the least, so let us understand this. So osmium, ये तो आप जानते हो कि हम जो कर रहे हैं कैलकुलेट वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज 8. नाउ हमें देखना है कि नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है. तो नाइट्रोजन में भी ये रूल नंबर 1, जब तक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका रूल नंबर 1 ही एप्लीकेबल होता है. सो नाइट्रोजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3. So 2s2 2p3. So it is clearly, you can understand nitrogen having 3 unpaired electrons. So this is 3. Bromine is having 2 bromine atoms are there and 1, and ppH3 is 2 electron donor. And NMe2, NMe2 जो है उसके लिए आप देखो स्टूडेंट्स, NMe2 फिर सेम स्टोरी, अगर AsPH2 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो NMe2 भी वही होगा. फिर भी हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. नाइट्रोजन इज हैविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो जब वो NMe2 फॉर्मेशन होगा, जब वो NMe2 फॉर्मेशन होगा तो ये 2 मिथाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ये 2 मिथाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. तो इसमें कौन सा रूल अप्लाइड होगा? इसमें रूल नंबर 1 विच इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. कितना है स्टूडेंट्स? कितना दिख रहा है? 1. सो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये चार्ज दिख रहा है आप लोगों को. सो यू हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, सो एज बिकॉज वी आर एडिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सो ये हो गया आपका 1. सो दिस कितना हो गया? 8 19 11 12 13 14 15 16 17. So this is having 17 electrons. It is not open. So the answer is D. Thank you students for watching our video. Please like, share and subscribe.